Jai Guruji. I have come here on work permit. 3 months back, my visa got expired. So I was asked to go undergo for a medical test. I underwent through my medical test on 13th May, and I got the reports on 16th May. Then after seeing the reports, I was shattered. So since I'm alone here, I have my family in India and I have not told anyone. Then I sent my reports to one of my friend who is doctor in India. So when he saw the reports, he said he got panic and he scared me more. And when you read it on Google and Google scares you more. So here the doctor said it is highly recommended that you go for a CT scan. So since it's a country where you don't get an appointment easily, I tried to reach out to Norfolk Hospital. I went there. I submitted my requisition and I asked for an appointment. They said that you cannot get an appointment within 2 months. Like all the appointments are booked, so you get after 2 months only. So I requested them, but they denied. After a couple of days, I got a call from Norfolk Hospital that okay, your appointment is booked and you are getting an appointment on 16th June. I requested them to make it early since my visa process is on hold. So they said, no, we cannot do anything because all clients have booked it. Then again, after 2 hours, I got a call that, okay, your appointment is rescheduled and you're getting it on 29th of May. When I went there, 24th of May. When I went there at 3 p.m., they told me that we don't have any of your appointment booked with your name. They couldn't find even my record in their system. They were not able to locate the requisition which I submitted there. So I was wondering, like, wow, and I got upset with Guruji. I was getting angry, like, what is happening with me? And you're not supporting me, like, why I have come here? And all those, negative thoughts started buzzing in my mind. Then I went back crying. I was crying all the time, and I was just chanting Guruji's mantra. Next day, they gave me a call that finally they gave me an appointment of 31st May. That was Guruji's Mahasamadhi day. I went there early morning 6:30 since that was the only appointment available for me. One of their clients has cancelled the appointment, so I got that appointment. So finally, and that too, I was not having my health card. So Guruji helped me. I don't know how he made it happen, and I got my health card as well. Otherwise, I was ready to pay $800 something for the cost, but Guruji helped him in that. Then finally, I got my test done, and they told me that you have to wait for 10 days to get the reports. I was so impatient and I was so curious to know like what is there in the report. Like in X-ray, it came like there is a nodule in my left lung, which is 1.6 centimeter long. So that it could be benign or malignant, but if it is more than 1 centimeter, there are 90% chances of it has to be malignant. So I checked with my doctors also in India. They were also asking me to come back, like since you don't have anybody there. But I had my Sangha with me here. They helped me a lot in that. Thank you, Sanjay, for that. And then finally, I got the reports on 2nd of June. And that too, I don't know how it happened because it takes a long time to come. Then reports were normal. It was not there. That nodule which was there in the X-ray, it was not there. So thank you, Guruji. Thank you for everything. And whoever comes under Guruji's wing, he takes care of everything. Thank you. Jai Guruji, anyone else wants to share this also? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरी स्टोरी ऐसे है कि लास्ट ईयर जनवरी में मैं गुरु जी के साथ जुड़ी। मेरी सिस्टर बहुत फॉलो करती थी, तो उनकी 25th एनिवर्सरी थी, उनका घर में सत्संग था।
तो दिल्ली में मैं वहाँ गई। गुरुजी को शायद पता था कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो उसने वहाँ से मेरे लिए यही वाला सेम स्वरूप इतना बड़ा ऐसे ही सारा फ्रेम करा के रखा और बोली गुरुजी आज तेरे साथ जाएंगे। दिल्ली से वो मेरे घर लुधियाना की हूँ मैं, तो वो वहाँ पे आ गए। विराजमान हुए घर पे, हम हाथ जोड़ते थे, पूजा करते थे नॉर्मली। फिर अप्रैल में क्या हुआ कि मेरा बर्थडे था और बेटा मेरा यहाँ पे पढ़ रहा है, तो 15 डेज के लिए वो सिर्फ लुधियाना आया। और 6 अप्रैल को हमने सोचा कि सिर्फ फैमिली के लोग हम 5-6 जने मिलके और गुरु जी का सत्संग करेंगे क्योंकि बेटा है। तो सत्संग के लिए प्लान किया, बट हुआ क्या, लाइट सुबह से लाइट नहीं है, जनरेटर नहीं चल रहा, डीजल नहीं मिला, इन्वर्टर बंद है, कुछ भी नहीं है। शाम को सत्संग रखा है, फोन पे सत्संग चलाया, 5 जनों ने बैठ के सत्संग किया, बच्चा भी बैठा, सत्संग हुआ, गुरु जी का नाम लिया। चलो 22 अप्रैल को वो यहाँ से वापस आ गया। 22 मई लास्ट ईयर हमें फोन आया, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे। और किसी को शायद याद भी हो, न्यूज़ में भी बहुत आया था, नॉर्थ यॉर्क पे ही वाज वेटिंग इन द बस स्टॉप फॉर हिज बस टू कम, और सामने से एक गाड़ी ने आके उसे हिट किया और अंदर बैठे बैठे और ऐसा किया कि मतलब आज भी मैं वो सोचती हूँ ना तो मैं काम जाती हूँ। जिन लोगों ने वो एक्सीडेंट देखा तो वो मानते हैं कि ये मिरेकल था कि वो बच्चा आज बचा हुआ है। मतलब विद इन 15 मिनट्स वो हॉस्पिटल में ले गए और सैनिक ग्रुप में था मेरा बच्चा। 25 डेज वो वेंटिलेटर पे था और 2 months ही वाज देयर इनसाइड। और जब हमें पता लगा ऑब्वियसली तो हमारे तो मतलब बस की चीज ही नहीं थी, तो हमने पकड़ा कि गुरुजी क्या किया, संभालो, मुझे नहीं पता कैसे होना है, क्या होना है, कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं मालूम है बस। तो देखो थोड़ी देर में पता नहीं कहाँ से किसके थ्रू एक बंदा आता है जो कहता है हाँ सैनिक ग्रुप में मेरी जान पहचान है, क्योंकि यहाँ पे उसके रूममेट सारे बाहर हैं और सब ट्राई कर रहे हैं मगर किसी को उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं बता रहे। बच्चे रो रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो गया, कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ है। तो उन्होंने सीधा सैनिक ग्रुप हॉस्पिटल लगाया फोन और डॉक्टर से डायरेक्टली मेरी बात करा। जिस टाइम डॉक्टर से मैंने बात करी, डॉक्टर ने बोला ही इज ऑलमोस्ट नॉट देयर। तो वहाँ पे खड़े खड़े मैं बस गिर गई। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि कैसे बचाओगे, क्या करोगे, वो आप करोगे, मुझे मालूम नहीं है। तो बस उस टाइम पे मैं बस बैठ गई, घर में मुझसे जाप नहीं हुआ, मुझसे कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ बैठ गई। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। तो 3-4 दिन निकल गए, हमारे को किसी ने कुछ नहीं बताया। बस हमारी जो उस दिन बात हुई उसके बाद हमें नहीं पता वो किस कंडीशन में है, बस एक ही बार बात हुई, उसके बाद देसिक के बहुत सिक है और हमें कुछ नहीं पता, सर्जरीज हो रही हैं, ही हैज गॉट मल्टीपल फ्रैक्चर्स। मतलब यहाँ से उसकी फीमर बोन्स वगैरह दोनों बिल्कुल पूरी तरह टूट चुकी थी, मतलब ब्लड की ड्रॉप जिसको कहते हैं, ये बिल्कुल बच्चे में नहीं था। 4th डे मेरी यहाँ पे एक फ्रेंड रहती है, उसने बोला मेरी उसी के एक और फ्रेंड है सैनिक ग्रुप में नर्स है। तो मैंने कहा कि सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, किसी तरह गुरु जी का स्वरूप मेरे बच्चे के सराहने पहुंचा दो। अगर वो पहुंच गए तो मैं मान लूंगी कि हाँ भी वहाँ है और उसको कुछ नहीं हो सकता। ओके, वहाँ पे बात हुई, उसने ट्राई करा तो उन्होंने कहा आप रिसेप्शन पे छोड़ दीजिए, बट क्योंकि पीक कोविड पीरियड था और मेरे पास वीज़ा नहीं था और मतलब उस टाइम पे तो यहाँ पे आना एक वो भी अपने आप में एक मिरेकल था। मैंने वीज़ा वगैरह अप्लाई करा बट इन लोगों ने सबने हर जगह से कोई रिस्पांस मुझे नहीं है, क्योंकि वीज़ा मिलने की कोई चांसेस ही नहीं है। सैनिक ग्रुप से पेपर्स मंगवाए, सारा कुछ करा और मतलब 18 जून को मैं यहाँ पे आई और आप ये देखो कोई मेरा बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे 6 months का स्पेशल वीज़ा मिला एंड आई केम हियर। और जो मतलब उस लड़की ने जाके रिसेप्शन पे वो गुरुजी का स्वरूप वहाँ छोड़ दिया। मैंने उससे बताया, मैंने कहा बच्चे के बैग में होगा, जाके ट्राई करो, वो वहाँ छोड़ दिया। तो उसको मना कर दिया, कहते नहीं अंदर हम कुछ भी नहीं जाने देंगे क्योंकि वो इंटेंसिव केयर में है, वहाँ तो मतलब ही नहीं और कोविड पीरियड है। 5th डे हमने बहुत सारी रिसोर्सेज लगाए। 5th डे हमारे बच्चे के साथ हमें एक फेस टाइम कॉल अरेंज करके मिली और फेस टाइम पे उन्होंने दिखाया। पहले डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने हमें प्रिपेयर करा कि मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस है,
जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि आप उसे देख पाओगे। तो मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली। उसके बाद मैंने सिर्फ डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी हैं और उनका एक वो भेजा था स्वरूप, क्या वो उसके पास है? एंड ही शोड मी, वो उसके सराहने बैठे हुए थे अपने आप। और जब ये पहुंच गए वहां पे आके मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि अब तो गुरुजी पहुंच गए हैं, अब तो इसको कुछ हो ही नहीं सकता। एंड ही मेड इट पॉसिबल। वो बच्चा 25 डेज वेंटिलेटर पे था, मतलब और हमारी जान अटकी हुई थी क्योंकि हर रोज यही होता था, बीपी एकदम डाउन हो गया है, कुछ नहीं पता कब क्या होगा, बस ट्रीटमेंट चलता जा रहा था। और 18 जून को, और उस टाइम पे मुझे क्वारंटीन से एग्जम्पशन मिली। इन्होंने मतलब अपने पेपर्स वगैरह फाइल करे कि मेरे को यहाँ पे आके डायरेक्टली बच्चे से मिला दिया जाए। वहाँ पे आके मैं बच्चे से मिली और उसके बाद ट्रीटमेंट चलता रहा और अभी तक चल रहा है। लेकिन मैं मतलब कैसे शुक्राना करूंगी महाराज का कि आज मेरा बच्चा है वो बिल्कुल ठीक है। अभी भी उसकी जून में एक सर्जरी प्लान है, तो ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बट लिटरली जिन लोगों ने वो एक्सीडेंट वहां पे देखा था वो कहते हैं वाकई में आज हम हैरान होते हैं कि बच्चा बच गया। मतलब बहुत बहुत मैं कहती हूँ दिल से शुक्राना है इनका। फिर अभी जून में जिस दिन महासमाधि दिवस था सैटरडे को, उससे पहले तो मेरा वीजा एक्सटेंशन के लिए क्या हुआ है, दिसंबर से अभी तक नहीं आया। तो आई जस्ट गॉट ब्रोक। मैंने कहा गुरुजी बहुत हो गया, मैं थक चुकी हूँ। मैं मतलब मेरे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं, मैं कुछ भी बात पे परेशान हूँ, यहाँ पे अकेली सब कुछ मैनेज करना बच्चे के साथ। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते कुछ नहीं होता गुरुजी करेंगे। तो मैंने सैटरडे उन्हें बोला, मैं तो कहाँ है तुम्हारे गुरुजी, मैं थक चुकी हूँ, मैं मतलब परेशान हो गई हूँ। फिर क्योंकि जून में अब फिर सर्जरी है, मैं कैसे मैनेज करूंगी। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कोई साइन तो दो, तुम हो कहीं मेरे लिए कुछ हो। मेरी यहाँ पे एक कस्टमर है, मतलब हमारे इमिटेशन ज्वेलरी का काम है, तो ब्रैम्पटन में कस्टमर है, उनका मैसेज आता है मुझे संडे को महासमाधि दिवस का वो, तो कि यहाँ सत्संग है। तो मैंने कहा वाकई में तुम हो। फिर मैंने देखा, मैंने कहा पिकरिंग है, बहुत दूर है, जाना तो पॉसिबल नहीं है, कैसे जाऊंगी। तो फिर मैंने पता नहीं कैसे फेसबुक पे सर्च किया, वहाँ पे दिखा, वहाँ पे लिंक आया व्हाट्सएप ग्रुप का, वो ज्वाइन किया, मनीष जी से बात हुई, तो उन्होंने फिर मुझे वो शक्ल सेवा ग्रुप में डाला। तो वहाँ से फिर ऐसे में और थैंकफुल टू दीज पीपल, वो मेरे को उसके बाद जो तीनों सत्संग हुए हैं तो तीनों में लेके आए, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आज इन्होंने डोर पकड़ी है तो बस ये पार लगाएंगे, और तो क्या कह सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना आप सबका। जय गुरु जी।